with the help of dividend discount model. अभी डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अप्रोच आपको याद होगा कि हमने एक जो बेसिकली ये रिलेशनशिप्स वही हैं विच कम फ्रॉम द प्राइसिंग फार्मूलाज और you remember the constant growth model, Gordon's constant growth model, जो कि बराबर होता है आपको पता है कि P नॉट is equal to D1 divided by K E minus G, जहाँ पे K E आपका required rate of return on this common stock होता है और G is the growth rate, D1 is the next the upcoming dividend and P naught is the price based on this. So you know already this, okay? अगर हम इसमें KE को मालूम, what is the cost for the firm? The cost for the firm is the required rate of return of investor. तो अगर आप इस फार्मूले से KE को मालूम करें तो KE will be equal to D1 over P naught plus G. Very simple. So अब how can we calculate that? If the dividends are expected to grow at 8% annual rate, 8% की growth rate है, and the constant, okay, into foreseeable future, the constant growth model, if the expected dividend in first year were 2 and the present market price for 27, इस वक्त की market price आपकी जो P naught है 27 है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड फर्स्ट ईयर की आफ्टर वन जो कि अपकमिंग है वो 2 है और 8% आपकी जो है वो योर कॉस्ट आपका जो ग्रोथ रेट. इफ दिस इज द केस देन हाउ व्हाट विल बी योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कि फिर फर्म के लिए कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक हो जाएगी. तो जस्ट वर्क दिस आउट एंड देन यू विल हैव द रिजल्ट ऑफ 15.4%. तो आपका जो रिजल्ट है या आपका जो कॉस्ट ऑफ कंपनी कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक for the firm है 15.4%. Once again, we have no need to adjust it with T or the tax rate क्योंकि this is a non-tax deductible item. We cannot adjust T for it. It's unlike the bond. So only in the case of bond हमें जो tax adjustability करनी पड़ेगी. Otherwise, we will be having no treatment of T here with preferred stock or common stock. Yes, you are done with this. अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. Other way or the other method of calculating the cost of capital for equity is applying CAPM, capital asset pricing model. We just have completed the discussion of CAPM in the previous class. आपको याद होगा this is something we call the equation, the CAPM equation, और जो आपकी security market line की equation होती है वो ये क्या कहती है कि RJ is equal to return on stock J फर्ज करें, okay? So RJ is the return on stock J is equal to RF जो risk free rate आपका है और फिर आपका ये जो है वो I'm sorry, this is the market return, this is the risk free return और ये market return और ये आपका RF जो है वो free market. This is आपको याद होगा ये आपका risk premium कहलाता है. This is your risk premium and this BJ beta J is the securities इस stock की जो आपका stock है उसका जो systematic risk है, the measure of systematic risk. How we calculate it, we did it in the previous class. So this is the simple equation which tells you that the relationship between risk and return. So based on this, आपको you know what are these ठीक है जी and okay, I think these are all correct now. तो if that is the case और आपको given है यही हम स्टॉक को ले लेते हैं जी, ये वाला स्टॉक, ठीक है, मे बी तो ये आपका 8% इज रिस्क फ्री रेट. आपके पास जो डेटा है वो आपका ट्रेजरी बिल्स पे 8% है तो दिस इज योर 8%, ठीक है जी. और आपका मार्केट रिटर्न फर्स्ट करें इंडेक्स पे KC 100 इंडेक्स के ऊपर आपका जो रिटर्न है तो वी जस्ट यूज दीज फिगर्स. 8% इज योर रिस्क फ्री रेट. आपका RM जो कि आपका हम फर्स्ट करें ये KC 100 इंडेक्स को हम ले रहे हैं तो KC 100 इंडेक्स का आपका ये जो रिटर्न है दैट इज फर्स्ट करें 13% है ऑन एवरेज, okay जी. And then we have the beta for stock A which is equal to say 1.2 है तो इसका मतलब क्या होगा, the stock is risky or the stock is
aggressive or conservative? Yes. Beta is more than one. You will Risky. risky. Yes. So it will be a risky stock क्योंकि इसके जो beta है वो market what is the market beta? What is the value for the market beta? 1. ठीक है. So it is greater than 1. So we assume that when it is 1 more than 1 so it is riskier than the market or it is simply an aggressive stock. तो आप इन सारी वैल्यूज को प्लग इन करें अपने फार्मूला के अंदर, हमें रिजल्ट मिला 14। तो इसका मतलब है कि इस स्टॉक के ऊपर जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 14%। और अगर ये 14% आपके लिए कंपनी के लिए अगर ये आपके जो इन्वेस्टर है उसके लिए अगर ये 14% उसका रेट ऑफ रिटर्न है या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? फर्म के लिए यही चीज उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगी। दिस हाउ वी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्लियर हो गई बात? ये आप सवाल पूछ सकते हैं। और कैलकुलेटिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या आपकी कंपनी की वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज द मेन द होल फॉर द एंटायर फार्मूला। इसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। सो फॉर व्हाट वी हैव डन नाउ, हमने अभी तक जो है वो ये के की वैल्यूज मालूम की हैं। तो हमने मिसाल के तौर पे के डी मालूम कर लिया कि कैसे होगा। फिर दूसरा अगर आपके पास प्रेफर्ड स्टॉक है तो फर्ज करें वो के पी भी हमने मालूम कर दिया। तो और तीसरा फर्ज करें कॉमन स्टॉक है तो हमने तीनों ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय बाय बॉन्ड होल्डर्स, बाय प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर और कॉमन स्टॉक होल्डर, ये सारे हमें पता चल गए। इसका मतलब है स्पेसिफिक कॉस्ट हमें पता चल गई, कंपोनेंट्स की कॉस्ट पता चल गई। अब हमें सिर्फ क्या करना है कि वेट वेट इन इनकी इस कॉस्ट को वेटेड एवरेज के साथ हमें इनका वेट्स लेके उसको मल्टीप्लाई करना है और उसको फिर सम कर देना है, बस। बाकी सिर्फ ये तो हमें अब हम क्या करेंगे, सिर्फ वेट्स को मालूम करेंगे। तो वंस वी हैव कंप्यूटेड द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स से मुराद क्या है? आपकी ये वाली ये तीन चीजें, ठीक है जी। एंड द फर्म्स फाइनेंसिंग वी वुड असाइन वेट्स टू ईच फाइनेंसिंग। अब हम वेट्स की तरफ जाएंगे, वेट्स असाइन करेंगे सोर्सेज अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड एंड देन कैलकुलेट वेटेड एवरेज। उसके बाद हम वेटेड एवरेज, अब ये ठीक है। अब ये एक बात, ये जो वेट होंगे ना ये तो या मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि या तो ये मार्केट वैल्यू बेस्ड होंगे, ठीक है जी, या तो ये मार्केट वैल्यू बेस्ड होंगे या तो ये बुक वैल्यू बेस्ड। लेकिन जो बेहतरीन तरीका है वो मार्केट वैल्यू का, ठीक है। तो यूज मार्केट वैल्यूज और उसके बेसिस पे ये वेट्स कैलकुलेट करें। तो जो इस वक्त का वैल्यू आपके स्टॉक का है, बॉन्ड का है और आपके जो मार्केट का वैल्यू है, तो उसको हम उसके बेसिस पे इसके वेट्स मालूम करेंगे। स्टेप्स कौन से हैं? 3 स्टेप्स हम इसको इस पूरी चीज को 3 स्टेप्स के अंदर कर सकते हैं। पहले हम वेट्स कैलकुलेट करें, फिर कंप्यूट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ डेट एंड इक्विटी और सिक्योरिटी। इट्स ओके अगर आप इसको पहले कर लें। हमने पहले कर लिया, इसको स्पेसिफिक कॉस्ट मालूम कर ली है, डॉट डेट और इक्विटी की। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको हम वेट्स मालूम करेंगे और फिर आपका बेस्ड ऑन दीज टू इनपुट्स वी कैलकुलेट दी बैक और द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट। अच्छा जी, अब हम कंप्यूट वेट्स, पहला हम स्टेप क्या करते हैं, वेट्स मालूम करते हैं। तो फर्ज करें आपकी जो अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग है, ये टोटल अमाउंट एक डेट के थ्रू आपको 30 मिलियन रेज करने हैं, ठीक है। प्रेफर्ड स्टॉक के थ्रू आपको 10 मिलियन करने हैं और कॉमन स्टॉक के थ्रू आपको 60 मिलियन करने हैं। कुल मिला के ये 100 मिलियन। तो अब आप इसका वेटेज मालूम कर लें, सिंपली 30 को डिवाइड कर दें 100 के साथ। तो ये डेट का वेटेज आपको 30% मिल गया या 0.3 मिल गया। प्रेफर्ड स्टॉक का 10 मिलियन है तो 10 ओवर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका 10% हो गया या 0.10 हो गया। और ये कॉमन स्टॉक इक्विटी आपका 60 मिलियन है तो 60 ओवर 100 मिलियन आपका हो गया जी ये 60%। ये कुल आपका ऑलवेज इंश्योर कि आपका जो सम ऑफ योर ऑल वेट्स शुड बी इक्वल टू 100% और 1। ये ध्यान में रखें, ये सम ऑफ ऑल वेट्स मस्ट बी 1 या 100%। वंस दिस इज डन, फिर हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पेसिफिक कॉस्ट आपको पता था, हमने जो डेट की मालूम की थी 6.6% थी, प्रेफर्ड स्टॉक की 10.2% थी और कॉमन स्टॉक इक्विटी की 14%। हम ये पहले कर चुके हैं। तो इफ ऑल इज डन देन यू हैव नाउ वेट्स भी आपको मिल गए और आपको केस के भी वैल्यूज मिल गए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम वैक मालूम कर सकते हैं। तो दिस इज कंप्यूट क्विक। हाउ कैन वी कंप्यूट वैक? ये सिंपली ये आपकी स्पेसिफिक कॉस्ट, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें
इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके साथ और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ डेट हो गई 1.98%, ठीक है जी। और ये आपकी प्रिफर्ड स्टॉक हो गई 1.02%, एंड ये आपकी जो है वो कॉमन स्टॉक हो गई 8.4%। अब इसको सम अप कर दें 11.4, आपकी जो कॉस्ट है, cost of work weighted average cost of capital है, that is 11.4. Yes, any question please?